इमोशनल बात कहना चाहता हूं, दिल की बात कहना चाहता हूं. दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट. राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको. जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है. अगर कोई जुपिटर पे खड़ा है, अगर उसे जुपिटर की खेच से निकलना होता है तो उसे 60 किलोमीटर प्रति सेकंड एक्सेलरेशन होना चाहिए उसका. हिंदुस्तान में हमारा जात का कॉन्सेप्ट है. दलित कम्युनिटी को इस धरती पे जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी की जरूरत है. Unfortunately, I'm a member of parliament. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but Unfortunately for you, I'm a member of parliament. Good evening, ladies and gentlemen. The Sera is over, the Ravan effigies have been burnt, and by now even the embers may have been swept away. But the political fireworks show no sign of ending. From India to Colombia, Congress keeps stringing its bow and shooting arrows straight at the BJP. Yesterday, we told you how, while speaking at a university in the United States, Rahul Gandhi claimed that there is a wholesale attack on democratic systems in India, calling it the single biggest risk to India. In the same speech, leader of opposition also alleged rampant corruption in Modi government. When asked about ways to deal with corruption, Rahul Gandhi offered decentralization of power as a solution. It is here that the Congress MP speech turned into an engineering lecture. Brace yourself for a masterclass in mechanics. Before we try to decode what the man who is marketed by his party as the next Prime Minister of India is trying to convey. Well, this convoluted argument has left people scratching their heads, much like when Rahul Gandhi declared that the idea of merit itself is flawed. The BJP, for one, has given up on decoding it. Their conclusion, not vision or wisdom, it's unadulterated gibberish. मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद अगर किसी के भी ज्ञान चक्षु उन्मीलन समझते हैं ना, उठने में कोई शंका रह गई हो तो समाप्त हो जानी चाहिए. ऐसा अद्भुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान दिया है कि हार्ले डेविडसन से लेकर टोयोटा तक और वॉक्सवैगन से लेकर फोर्ड तक बैठे हुए इंजीनियरों ने मेरे ख्याल से छाती पीटना शुरू कर दिया होगा कि इतना जबरदस्त ज्ञान कहां से आ गया है. कांग्रेस इस समय राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ का एक खिलौना बनती जा रही है. कांग्रेस का नेतृत्व एक जमाने में इतना परिपक्व था, आज की डेट में उतना ही अपरिपक्व है. And it's not just the politicians anymore. Even men in uniform are exasperated with the opposition's relentless, fact-free India bashing. 5 months have passed since Operation Sindoor decimated Pakistan, bringing it to its knees. Evidence after evidence has been laid bare, and yet Rahul Gandhi's Congress still echoes enemy propaganda. The India bloc still demands to know India's losses. They cling to every hostile claim, every anti-India assertion. The assertions that have now been dismissed by the Indian Air Force Chief as nothing but manohar kahaniyan, just fiction and fabrication. उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला. मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूं उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा. अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो. आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना. जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो. लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें. सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो
वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है। न हम हाँ कह पा रहे हैं, न ना कह पा रहे हैं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मुझे लगता है जो सीधा साक्षात सत्य दिखाई पड़ रहा है उसको कोई न देखना चाहे तो फिर मैं कहूंगा ये दूसरी आंख में भी मोदिया बिंदु होने का प्रमाण है। It is now pretty much established that the opposition's hatred for Prime Minister Modi, his party and government now has transitioned into India bashing. But can we really expect better from a party that parrots Rahul Gandhi blindly? Even today, there are Congress posters in Uttar Pradesh portraying Rahul Gandhi as Lord Ram, and Congress leaders calling Prime Minister Ravan. As Rahul Gandhi undertakes his malign India Yatra offshore, BJP is now listing how the very institutions where he lists the flaws in India have proven him wrong with facts and figures. Let's start with Cambridge University, the same place where Rahul Gandhi first criticized Prime Minister Modi's leadership. In December 2024, a detailed research study was published on India's digital transformation under Prime Minister Modi. Moving on to Stanford University, in its AI Index report, the university has stated that India ranks first in global AI skill penetration. It also released the Elsevier top 2% scientist list for 2025, featuring 6,239 Indian researchers. Clear proof of India's major contributions to global scientific research. Perhaps an answer to Rahul Gandhi saying that India does not see itself as a future global leader. Next is another one of Rahul Gandhi's favorite venues, the Chatham House. The Chatham House report, according to the BJP, has observed that India is reshaping the international order. And lastly, the Oxford Business School in 2024 described India's proactive governance and timely implementation as a game changer in digital governance. So, ladies and gentlemen, that brings me to the Motorola legitimate question on the News Hour tonight. Is Rahul Gandhi's engineered narrative about India's failures a non-starter? That's the question, and that's the debate on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. And joining me tonight, Radhika Khera, national spokesperson of the BJP, joining me in the studios this evening. Also joining me, Harshvardhan Tripathi, senior journalist. To his right, Gaurav Chachra, national spokesperson of the Samajwadi Party. To my left, I have Waris Pathan, national spokesperson of the AIMIM. Happy to welcome him into our studios this evening, straight from, कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से? Mumbai. बिहार का गमछा लेके आया। बिहार का गमछा लेके। Well, also introducing Vivek Srivastava, political analyst, supports the left parties. But my first question, Ashwini Kumar Mishra, leader of the Congress party. Ashwini ji, I'm not an engineer and I don't think I will understand the very, very tough lesson of engineering that was given by Mr. Rahul Gandhi about 150 kilos, 2 people, motorcycle, 3,000 kilos, cars. How many people, I didn't quite get it. But the question remains on why would Rahul Gandhi not have enough faith in India and its perseverance to be future leaders of the world? Is he doubting himself or the people of India? Navika ji, good evening to your viewers. And you asked me a leading question. I myself is a computer engineer. I very well understand what he was trying to tell. But the problem is people जिनका राजा ही चौथी पास हो उनको कहाँ से intellectual बातें समझ में आएंगी. So I'll not get into his speech. Let me tell you one more scientific fact, Navika ji. If you put a frog in a boiling water, it will jump out. But if you put a frog in a cold water and start boiling it, eventually it cannot come out because it tried to accustom to the situation. Modi ji thinks grotesque that example. May I please file my objection to this grotesque example? Modi ji thinks this whole people of country are like that frog. कि आप उनको पहले एक ठंडे पानी में डालोगे, अच्छा सा फील कराओगे और बाद में धीमे धीमे जलाओगे, गर्म करोगे और eventually they will succumb to your आप इस देश के लोगों को
फ्रॉग से कंपेयर नहीं, मैं बोल रहा हूँ मोदी जी समझते हैं। पीपल ऑफ मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी इस देश के लोगों को समझते हैं। ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर फ्रॉग्स, but are you calling I have people no of this respect country for frogs. I am telling Modi ji thinks these peoples are like that frog. How do you know? Are you Because into that is what he has Modi been ji's doing mind? it. That is what he has been doing it. I really don't get it. Modi ji Radhika jo kare Sinha, master stroke. Citizens of India are now being compared to frogs. I don't know where to take this argument and this debate. First, respond to Navika ji, allow me to finish my point. finish. आपने देश की जनता को फिनिश कर दिया. मोदी जी को लगता है कि देश की जनता जो है इस तरीके से काम करेगी, जबकि ऐसा नहीं। देश की जनता जागरूक है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। देश में लगातार रिवोल्ट हो रहे हैं, देश में लगातार लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और राहुल गांधी उसके लीडर हैं। राहुल गांधी हैज टेकन दैट बैटन ऑफ सोशल जस्टिस। ही इज रिप्रेजेंटिंग एवरीवन हु इज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स राइट, हु इज डिप्राइव्ड ऑफ द वेरी फंडामेंटल दैट इज people of this country are frogs. That is why you come from a world view of that. And Radhika Khera, obnoxious as this comparison is, please respond to it. Fluff. It's another fluff from Rahul Gandhi's party. And this morning he woke up at night and he gave another piece of bite. And here his Pravakta is giving another bite. So I believe that the people of India do not want to listen to the Congress, which is why in the last 10 years, Rahul Gandhi's leadership with the Congress has lost over 90 elections like fluff. So the same way, even your viewers will not be interested in listening to what he has said. But let's also talk about, since he said that he's an engineer, let's talk about basics, because Rahul Gandhi is a very big fan of biking and racing, car driving. He's like, when the Congress was in power, Navika ji, Rahul Gandhi was a regular for going out on this Noida Expressway only. Puri car rallies hoti thi, bike rally. He's a proper rally person. And he does not even know that it's only 900 kgs of metal that is used to make a car. Not 2000 or 3000 like he was saying. Basics are wrong. भैया Google है, Chat GPT है, कर लो 10 से, और इतना तो बाइक में भी नहीं लगता जितना वो कह रहे हैं. पहले बेसिक ठीक करो. आपने बात करनी है, जो नैरेटिव देना है. एंड ही इज अगेन ऑन हिज यात्रा. एक तो राहुल गांधी इज वेरी फेमस फॉर हिज यात्रास. नाउ he is going on a yatra to defame the country, and it is always happening again and again. The minute Rahul Gandhi steps out of the nation, his own party goes in tension कि अब ये क्या बोलेंगे, और ऐसे बैठ जाते हैं. I have first-hand experience of this. और देखो, and I'm telling you, Vivek ji is also going to agree with me. तब से उनका चेहरा ही उतरा हुआ है देख के कि अरे ये फिर क्या बोल के आया, मेरे को इस आदमी को डिफेंड करना पड़ेगा. Now see, going abroad and saying that our nation is collapsing, going abroad again and again and just parroting what his guru Sam Pitroda does, it's not correct. Do you think it is right going outside the country? Absolutely. Ashwini ji, I'm asking Absolutely. you, it's right to go and say that there is no manufacturing in the country. There is no manufacturing in the country. The country is dying. There is nothing happening in the country. What is going wrong in the country? कहाँ protest हो रहा है? किसके अधिकार छिन गए हैं? आज देश की जनता ने लद्दाख में नहीं देखा, एक सैनिक को आपकी पुलिस फोर्स ने फायरिंग में मार दिया. एक सैनिक को जिसने देश के लिए लड़ा, आपके पुलिस ने उसको ही मार दिया लद्दाख में. प्रॉब्लम यह है ना कि मोदी जी से सवाल करना आपको लगता है देश से सवाल हो गया. मोदी जी देश नहीं है, मोदी देश नहीं है. आप बताइए ना, लद्दाख में एक सैनिक जो देश के लिए लड़ा, आपकी पुलिस ने उसको मार दिया. क्या किया आपने? अश्विनी आपके गुंडों ने गुर्जर आंदोलन में 72 लोगों को मार दिया. प्रोटेस्ट में जाट आंदोलन में 18 लोगों को मार दिया. मत सोचिए अकेली लड़कियों को मार रहे हैं तो आप ऊंचा बोलेंगे. आंदोलन हो रहे हैं. आगे जी ऊंचा अकेली लड़की नहीं है, मैं भी हूँ to ably support you, but Vivek Srivastava, Yes. my question to you is, Yeah. do you see the glimpses around the world? आपने देखा है US, आप रोज सुबह ट्रंप की बात उठते थे, and you thought it was the gospel Yes. truth. Yes. Of course, the Air Force chief today has put a lot of questions to rest. But in the US, do you know there is a shutdown that is going on? Yes, Have you seen France, developed country, Europe, where there are protesters on the streets? Eiffel Tower has had to be shut down because there are no people to man it. There are financial problems in that country. Look at the people on the streets over there. UK के हाल आपके सामने है. Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, you've seen it all. Yes. And in India, what are we seeing? In India, we are seeing an economy growing at 7.8%. We are seeing schemes being
announced in various parts of the country in just the last 20 days, from Odisha right up to Gujarat, to Arunachal Pradesh, to Bihar, to all over the country. And Putin says India is not a country that is going to get pressurized by America. Putin recognizes India's talent, but Rahul Gandhi undermines it. You know, see, the problem is one statement from one person from a foreign country like Putin, and everybody starts jumping and dancing. Wah ji wah, hum to Vishwa Guru ban gaye. This is nonsense. I mean, are you trying to ratify the performance of the Indian Prime Minister and this nation by what the head of a foreign state says? This is ridiculous, point number one. Point number two, आज internet का ज़माना है. Whether you speak here or you speak in Colombia or you speak in United States of America, what you speak, people are listening. And if he is the leader of opposition of a big nation like India, दुनिया सुनती है. तो ये कहना पुराना नैरेटिव 50 साल पुराना, अरे विदेशी धरती पर गए और विदेशी धरती पे जाकर के बोला देश का क्या होगा? What are you scared of? What is there to hide? If you are good, people know you are good. The world knows you are good. But the problem is you are not good. आपने गिनाया मुझको, नाविका जी, आपने कहा साहब अमेरिका में शटडाउन हो रहा है, फ्रांस में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, so on and so forth. इस मुल्क में क्या हो रहा है? मैं बताता हूं इस मुल्क में क्या हो रहा है. और सोनम वांगचुक जैसे अवार्ड लेने वाले व्यक्ति को जेल में डाला आपने. आप बताइए बरेली में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, उत्तराखंड में प्रोटेस्ट, SIR और उसके बाद वोट चोर गद्दी चोर का आंदोलन बिहार में, पूरे देश में यहां नहीं आग लगी हुई. अब आप उसकी लिपापोती करके आप उसको कवर अप करें. एवरीथिंग इज फाइन इन दिस नेशन एंड राहुल गांधी इज रॉन्ग इफ ही गोस एंड टॉक्स. ऑल राइट, यहां लिपापोती चल रही है. हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं वी आर नॉट वर्स ऑफ देन द अदर स्टेट्स वी आर टॉकिंग ऑफ. यहां पर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए राहुल गांधी अगर बाहर कह रहे हैं तो गलत क्या कह. नवका जी, सबसे पहले तो आज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके शो पर सोनिया गांधी जी से, अत्याचार बंद कीजिए. बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं. और अश्विनी जी इंजीनियर हैं, मेरे पिताजी तो मुझको इंजीनियर बनाना चाहते थे लेकिन मैं इंजीनियर नहीं बना. लेकिन सामान्य बुद्धि रह गई. अब वो असामान्य बुद्धि है जो इंजीनियरिंग का वो मॉडल समझा रही है जिसमें इंजीनियर, अच्छा पहले वो था पुश, आप लोगों को याद होगा वो यात्रा के समय वो संघ से लड़ने का तरीका बता रहे थे, तब से कितने चुनाव हो गए. अब पुश के बाद है पुट मोटर देयर. ये नया कीवर्ड है कांग्रेस के लोगों की. दुनिया में आप जाकर इस तरह से आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप इस तरह की बातें करेंगे दुनिया के अलग अलग विश्वविद्यालयों में. आप ठीक है, भारत के विश्वविद्यालयों में नहीं बुलाया जाता है क्योंकि यहां आपके जो छात्र संगठन है वो चुनाव हार जाते हैं, आपको कोई सुनना नहीं चाहता. ये क्यों होता है? जो आपको अच्छे से जानता है वो आपको बुलाएगा तभी जब समझेगा कि कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ वर्थ होना चाहिए. जो नहीं जानता वो बुला रहा है और उसने जान लिया. असली ऐतराज कहां होना चाहिए? भाजपा को कहें, नरेंद्र मोदी को कहें, कुछ भी कहें, चलो समझ में आता है. सवाल उनसे पूछा गया क्या भारत और चीन आगे आपको लीडरशिप रोल में दिखते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं भाई, भारत नहीं लीडरशिप रोल में. सबसे बड़ा ऐतराज इस पर होना चाहिए. राहुल गांधी पॉलिटिकली अनफिट हैं. राहुल गांधी के साथ अत्याचार हो रहा है. वो जो बोलते हैं भारत विश्व गुरु बनने की राह पर वो नहीं समझ पाते. क्यों पॉलिटिकल इनफिट है? बिल्कुल सही बात. इसीलिए मैं कह रहा हूं देश की इकोनॉमी का हाल देखो. व्यक्ति को ये भरोसा नहीं कि लोगों को खाना खिलाना पड़ रहा है, कैसे विश्व गुरु बनाओगे आप? कर सकता है, कैसे चाइना से कंपेयर करोगे? वो कह सकते थे ना कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में मैं करूंगा. क्या देश के किसानों की बात करना पॉलिटिकल अनफिट है? क्या देश के जवानों की बात करना पॉलिटिकल? देश पर भरोसा नहीं है राहुल गांधी पर, देश को भरोसा नहीं. इसको आप समझिए. राहुल गांधी इस पर भरोसा नहीं करना चाहते. आपने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, बताइए ना. एक क्वेश्चन आपसे, एक छोटा सा सवाल. इस मुल्क के अंदर 70 साल तक लगभग कांग्रेस और जो सेकुलर पार्टियां उनका राज्य रहा. वाजपेयी और बीजेपी माइनॉरिटी में थे हमेशा, ठीक. 2 सीटें भी थी, एक जमाना था जब बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थी. आ रहे हैं ना सवाल पे, हिस्ट्री से ही सवाल निकलता है. तो निकम्मे थे आप क्या तब देश आपको मानता नहीं था, आपकी रिस्पेक्ट नहीं थी, आपकी एक्नॉलेजमेंट नहीं थी. 100 सीटें लोकसभा, 100 सीट वाली सरकार ने भारत का 100 सीट वाली बढ़ाया. और राहुल गांधी को ये कह रहे हैं साहब को ध्यान, लोग आपकी सुनते नहीं है. बिहारी वाजपेयी ने दुनिया में 240 सीट वाले प्रधानमंत्री को और पार्टी को आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो लीडरशिप नहीं दे. टोटल वोट भाजपा के 35%. With 36%, Rajna madam is saying that BJP and Modi is the most popular with 30
66% वोट ऑफ द नेशन, और बाकी के 64% सब बेकार है। My friend, वोट चोरी। 1 minute. वो भी My वोट चोरी। friend, my friend, BJP has won 240 seats, not 303 like last time, but 240 seats. चोरी कर। They have more. अगर चोरी करना होता ना तो 350 होते। अगर चोरी करना होता तो 350 होते या 400 होते जो वो बोल रहे थे। आप हैं किस ख्याल में? लेकिन with 240 seats and foreign pollsters doing the popularity test saying Modi is the most popular leader in the world, yet इनको शक है, इनको शुभा है, and they are questioning the self-confidence of every single Indian, saying that India can never be a leader. Navika ji, two very important things. Rahul Gandhi is going on foreign soil and saying that democracy खतरे में है. अगर डेमोक्रेसी खतरे में होती तो ये जो महाशय जो यहाँ बैठे हैं वो भी जेल में होते, यहाँ बैठ के जो बातें बोलते नहीं बोल पाते, और भी जो आते हैं लोग और किस तरीके से क्या भाषा आपके चैनल पे बोल के जाते हैं आप मुझसे बेहतर जानती हैं. You would both be in jail. That was a fact under Indira Gandhi's regime in 1975. I didn't speak over you. Are you really? Are you threatening us? आपको हिंदी समझ नहीं आती, हिंदी में बोला इसीलिए आपके लिए. बताइए ना, बाकी लोगों तो जेल में डाल ही रहे हैं, आप जेल में डाल ही रहे हैं, आप क्या थ्रेटन कर रहे हैं? जेल में डालना होता ना तो भैया आप वहीं होते, आप मेरे स्टूडियो में नहीं होते. Very more important point. Now Rahul Gandhi on 2nd October over there is saying that our entire freedom struggle was without struggle and without any armed struggle and without any sacrifice. Who was Mangal Pandey ji? Who was Bhagat Singh ji? Who was Lakshmi Bai ji? Do you agree with me that there was no struggle? That there was no sacrifice? Just because he only wants to talk, say, Nehru ji ne sab kuch kiya, jo apne kapde tak bhejte the videsh, because his father was a very big lawyer, and at that time when we were under the British rule, you could not be a big lawyer if you were not subservient to the British. आप ब्रिटिश के गुलाम थे. जो बहादुर थे वो जंग में गए, जो कायर थे वो संग में गए. काले पानी में थे. देश की आजादी की सच्चाई यही है, जो बहादुर थे वो जंग में गए, जो कायर थे वो संग में गए. संग में गए. 1 minute आजादी के टाइम पे. अश्विनी जी, अगर आप हमारे इन सब लोगों का नाम आज यहाँ पे लेके नहीं बोल सकते कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं. हमारे आज अगर हम इस कैमरे के सामने बैठ के चिल्ला के बोल रहे हैं और आप किंग और क्वीन के आगे गुलाब बन के नहीं बैठे, इट इज बिकॉज चाहे मंगल पांडे हो, लक्ष्मी बाई जी हो, तात्या टोपे हो, भगत सिंह हो, नहीं दी हमने. तो आज हम अंग्रेजों से पेंशन नहीं ली. अंग्रेजों Allow me to get in Waris Pathan. Allow me to get in Waris Pathan ji. Waris Pathan ji, I want to ask you, do you think this country lacks the self-confidence? The citizens of this country do not have the edge to lead the world tomorrow? Are you writing off the big, the grand, the great nation, India, like Rahul Gandhi is? देखिए नविका जी, राहुल गांधी ने जो बोला उनका जवाब देने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं. आपका कोई व्यू नहीं है, आपका तो हर चीज पे व्यू होता है. Why don't you have a view on this one? Is it right? Do you believe India has the potential for the world? Yes or no? बिल्कुल. मेरा भारत So then महान is था, Rahul रहेगा. Gandhi wrong when he says that India cannot lead the world? मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा हमेशा. और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके हमके सबके प्रधानमंत्री है. और मुझे संविधान ने अधिकार दिया है कि अगर देश के प्रधानमंत्री से मैं सवाल करना चाहूं कि अगर कोई नीति बराबर नहीं है तो मैं सवाल कर सकता हूं. देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि इस वक्त भारत के इमोशंस लगे हुए हैं. तो इतने पावरफुल है हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत इतना पावरफुल है, तो फिर प्रधानमंत्री ने अभी इंडिया पाकिस्तान की मैच क्यों होने दिया, क्यों रुकाया नहीं? मेरा एक मूल सवाल ये, देश की काफी जनता का भी सवाल है, क्योंकि देश की भावनाएं इंपॉर्टेंट है. देखिए प्रधानमंत्री को देश की भावनाओं की भी कदर करना चाहिए था. हमने एक तरफ कहा कि ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर, ट्रेड एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर. हमने पाकिस्तान से तमाम हमारे रिश्ते नातों को तोड़ दिया, उनको पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया. जब हमने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह से आतंकवादियों को भेज के पहलगाम के अंदर हमला किया, बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मजहब की बुनियाद पर उनके बीवी बच्चों के सामने कत्ल कर दिया उनका. हम पाकिस्तान की जो ये आतंकवादी गतिविधियां उसका भारत हमेशा से भुगतान भुगत चुका है. हमने पुलवामा देखा, हमने 26/11 देखा, हमने पहलगाम देखा.
भारत के वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में घुस के आतंकवादी कैंप्स को नेस्तो नाबूद कर दिया। हमने ऑपरेशन महादेव कर दिया। उसके बाद भी हमने कक्का डेलीगेशन भेजा विश्व में गया, जिसमें हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब भी हिस्सा थे। उन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां बिखेर दी, पूरे वर्ल्ड के सामने बताया पाकिस्तान किस तरह आतंकवादी को बढ़ावा देता है, उसको FATF की लिस्ट में डालना चाहिए, तमाम बातें करी। इतना सब होने के बाद भी इतने बड़े विश्व गुरु भारत इतना इमोशन के अंदर डूबा होता, आपने कुछ चुनिंदा रुपयों के लिए BCCI को अलाउड किया भारत पाकिस्तान की मैच खेलने के लिए। और वहां हमने देख क्या रहे, अरे हमारा कलेजा थर थर कांप गया था जब कोई देख रहा होगा मैच, जो हमारी बहनों के उजड़े हुए सिंदूर जो है हमारे सामने उनका चेहरा आ गया होगा, तो क्या सोचते हो? तो चेहरा आ गया। आज तक आप बैठ के शाहिद आपने अपने देश के फौजियों को नहीं सुना, आप ट्रंप को सुन रहे थे। आज देश के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है। अरे आपको देश के लिए प्यार होगा नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वारिस पठान को देश से बहुत प्रेम है। हम तो 1947 से जिंदा की टू नेशन थियोरी को ठुकरा के यहां बैठे हुए। आफरीदी जैसा जोकर पाकिस्तान का जो बार बार हमारे भारत के बारे में गलत अल्फाज करता है, उसके साथ बैठ के अनुराग ठाकुर मजाक मस्ती कर हमारे मुल्क के साथ में वारिस पठान असली देशभक्त, असली पेट्रोटिक हुआ कि वो अनुराग ठाकुर जो जाके शाहिद आफरीदी के साथ वहां पर बैठ के स्टेडियम में जवाब दो मेरे को, असली देशभक्त मैं हुआ या वो हुआ? मुझे जवाब। अच्छा, ये जो यहाँ ताली बजा रहे थे, इनके पार्टी के नेता है राजीव शुक्ला साहब। एक मिनट खत्म करने दीजिए, मैं आपके बीच में पार्टी मेरे को जवाब प्लीज होल्ड ऑन। यहाँ पे बैठ के ऐसे ऐसे दो शख्स कर रहे थे। मैं वारिस पठान जी की बात से बिल्कुल वाकिफ रखती हूँ, और मैं इनको कहना भी चाहूंगी कि इनके बगल में जो बैठे हैं उनको इनकी पार्टी से सीखना चाहिए और इनके नेता से कि विश्व में जाकर अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो ओवैसी साहब से सीखना चाहिए जब आप ऑपोजिशन में हो, ना कि ऐसे जाके बड़बड़ करके अब्बा जब्बा जब्बा करके आ जाना। दूसरी बात आती है मैच की। राज्यसभा से MP हैं, छत्तीसगढ़ से भेजे गए हैं, राजीव शुक्ला साहब BCCI में हैं। यहाँ पे बैठे हुए दोनों महानायक जाके बता दें, हमें एक चिट्ठी दिखा दें जहां पे उन्होंने लिख के कहा हो ये मैच नहीं होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी का मैं सांसद होते हुए BCCI से इस्तीफा दे रहा हूं। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि जब पिछला वर्ल्ड कप हो रहा था और दुबई में मैच हो रहा था तो कोई भी नहीं गया पाकिस्तान, लेकिन राजीव शुक्ला साहब चाहे खाना खाने गए या कहीं गए, ये बताएंगे वारिस पठान जी गए थे ना वो। अरे ये उससे कहने का है, ऐसे तो मैं डॉक्टर क्या जरूरत थी ऐसे टेस्ट मूवमेंट में जाने की? ये जो वक्त था ये वक्त नहीं था खेलने का पाकिस्तान के साथ। ऊपर है क्या? तो BCCI 2008 में क्यों नहीं रोक लिया था? 2008 में क्यों नहीं रोक लिया था? आप बताइए ना, आप बताइए ना, BCCI का सरकार के ऊपर है। आप बोलिए राजीव शुक्ला नरेंद्र मोदी जी से ऊपर है। आप बोलिए राजीव शुक्ला नरेंद्र मोदी जी से ऊपर है। बताइए ना, आप बताइए ना, राजीव शुक्ला का नरेंद्र मोदी जी से ऊपर है। राहुल गांधी जी तो ऊपर है ना सबसे। राहुल गांधी जी ले लें इस्तीफा। ढोलकी मत बनो। गौरव चाचा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मतभेद होना सही बात है। जो विरोधी दल हैं, people in opposition, they must question the government. There is no confusion at this point. You must question the government. You have the right to criticize the government, and you must do it every morning, afternoon and night. You must do it as an opposition. But what is important is where do you do it? Do you do it in your own parliament, in your own country, raise those questions, or do you run down your country at global fora? That is the question I'm asking you, because when Mr. Rahul Gandhi goes and says that India cannot be a leader of the future, is he doubting his own credentials, his own potential, or is he putting down a nation of 140 crore people? Number one. And number two, वो उनकी इंजीनियरिंग अगर आपको समझ में आ गई हो तो वो जरूर समझा दीजिएगा। देखिए, राहुल गांधी जी की जो बातें, उनका जवाब मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ
साथी यहाँ पे हैं, क्यों आपके लिए अलायंस पार्टनर वो देंगे। आप शर्मा रहे हैं? बैठो, अगर वो ना बैठो तो बोलने के लिए उनका जवाब हो जाएंगे। दूसरी बात, आप हिंदुस्तान में सदन में माइक बंद कर देते हो, आप यहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहते, SIR पे चर्चा होती तो नहीं करने देते, ऑपरेशन सिंदूर पे वो नहीं करते देते। अरे अभी आप पे भी आ रहा हूँ, हर चीज में आप पे भी आ रहा हूँ। आप कहते हैं सोनिया गांधी जी को अत्याचार के लिए माफी मांगे। अरे योगी जी से कहिए कि माफी मांगे कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 पे हो गया है। शर्मानी चाहिए। भाजपा के प्रवक्ताओं पे इतना प्रेशर है कि मुझे तो तरस आने लगा है, कहीं कुछ करना नहीं है। अरे उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1, कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है, बेरोजगारी नंबर 1 पे, राहुल गांधी कानून व्यवस्था हिली पड़ी है, नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, वोट चोरी का और ऊपर पड़ गया। राहुल की बहुत कठिन। आप लोगों से उत्तर प्रदेश और देश संभालने जा रहा, सिर्फ और सिर्फ गौरव चाचरा फिर से गौरव चाचरा राहुल गांधी आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो इंजीनियरिंग समझाई है वो समझा दीजिए। देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका जवाब जो है ये बहन जी की बात पे हंस रहे हैं, बहन जी बात कर रही है, भाजपा के वक्त अच्छे से जवाब देंगे। हर्षवर्धन जी, अब गौरव चाचरा जी की हंसी पर आप लोग आपका राजा चौथी पास, आपको इंटेलेक्चुअल बातें कहाँ से समझ में आएंगी? जिसका राजा चौथी पास हो दिखाता है, अश्विनी जी जितने इंटेलेक्चुअलिज्म का सब विजन जो है कांग्रेस लेके आई थी, हर्षवर्धन जी आपका लेके आए, बेरोजगारी लेके आए, अश्विनी जी का भी जवाब दे दीजिए। गौरव किसान आंदोलन ले लोग मर गए, फिर किसान वापस ले लिए, मर गए, फिर रोड क्या कर रहे हो? हर्षवर्धन जी, गौरव चाचरा की हंसी पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, अगर आपने उस वक्त जब ये सवाल पूछा था और आपने 4 फ्रेम में रखा होता अश्विनी मिश्रा को, विवेक श्रीवास्तव को, वारिस पठान को और गौरव भाई को, तो आपको समझ में आ जाता कि राहुल जी की इंजीनियरिंग ने सबके तार तंतु हिला दिए पूरी तरह से। अब इंजन कहां होगा, एक्सीडेंट होगा तो कहां से इंजन निकलकर कहां चला जाएगा, डीजल पेट्रोल से इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ, सचमुच दुनिया भर की कार कंपनी और अब देखो बीजेपी कैसे प्रेशर बना रही है। एंकर को समझाया जा रहा है, आप एंकर को समझाओगे, आप मीडिया को समझा रहे हो कैसे काम करनी पड़ती है। अरे क्यों प्रेशर बना रहे हो? मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। नहीं, इंजीनियर में नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, और आप भ्रष्टाचार का काम किया हो, जो जानता ही नहीं है समझ लिया। देखिए आप सुनिए, आप पहली चीज तो ये हर्षवर्धन जी, आप इस बात को समझें। किसको? राहुल गांधी कहना क्या चाहते थे? राहुल गांधी, हाँ मैं बता देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ जिसको यूज टू आप हो चुके हैं पंडित जी। और ये कहना चाहते थे राहुल गांधी कि इस मुल्क के अंदर सारा पावर सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो चुका है और देश की डेवलपमेंट के लिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर्स का एग्जांपल इस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था, इस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया। कार से चलना है कि बाइक से चलना है? नहीं, आप कार से चलें, बाइक से चलें, चाहे चाइना की तरह एक जमाने में साइकिल से चलें। डेवलपमेंट तब होगी जब आप डिसेंट्रलाइज्ड होंगे। अगर सब कुछ मोदी और अमित शाह लेकर के हाथ में बैठे रहेंगे, उनके हिसाब से निर्णय होंगे। पार्टी का अध्यक्ष नहीं है आपके पास, पार्टी डजंट हैव अ प्रेसिडेंट, द बीजेपी कैन नॉट डिसाइड, दिस इज वेयर द बीजेपी स्टैंड्स। और ये हर राज्य के अंदर है। ये पुट मोटर देयर कहां? नहीं, पुट मोटर देयर ये नाम दिखाई पड़ रहा है, बता दीजिए ना। हाँ, एक मिनट बताइए। राहुल गांधी सेंगे सर, हाँ सुन लीजिए ना सर, बताइए ना। हाँ, वो सिंपली ये कह रहे हैं, आपको मैं हल्के हिंदी में अंग्रेजी में समझा देता हूँ व्यूअर्स के लिए। एक जगह पे जनरेटर लगाने या मोटर लगाने के बजाय छोटी छोटी यूनिट हर जगह लगाइए, सेल्फ सस्टेन्ड हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो। और ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है राहुल गांधी का। मैंने इंजीनियरिंग नहीं की है, मैंने इंजीनियरिंग नहीं की है। This is a disclaimer from my side. I have not done engineering, but generator and motor are the same thing. I don't know. Viewers can find out if they are the same thing. If the explanation of the engineering class is going to come in this manner, how is the nation going to understand? I don't know. But on a serious note, I want to ask you, Varis Bhai,
Varis bhai, there is complete, anarchy that we are seeing even playing out in the United States of America, in European countries. In the middle of all of this, are we running down India only because we are in the opposition? I just want to ask you that question. Look at our neighborhood, look at the developed countries and look at India. Well, I don't want to see the neighborhood, what is going on there. What we see was Bangladesh, what we saw in Sri Lanka, what we saw in Pakistan, and now Nepal. So India has to be alert. But India is great, but opposition has a right to question the government. Modi is not the only person. We can question the government. Why should we not question if something is going on? And Navika, there are 2-3 things which I want to bring to your notice. Questioning the government is fine, but Radhika Khera, are they questioning the government or are they questioning the nation? They are questioning the nation and the potential of the nation and those Why do you segregate us from the nation? Of this Why do country? you That is my segregate us from question the to you. nation? We as a nation are one, but asking a question to the government does not mean that we are not a part of the nation. Why do you divide? BJP is not a nation, we all are nation. Okay, you mean to say that BJP is nation and we are not a part of the nation? Of course you are. Varis bhai, you are as equally as part of the nation as is Mr. Fluff. Everybody is a part of this nation, and unfortunately for this country, a leader of opposition who belongs to the nation's oldest party, every time he steps foot outside this soil, goes and defames the country. Always. Now, when he's talking about his engineering, I like to come back again to this engineering. Because if we go, of course it's defamation. If you're saying that not one person has died in the giving sacrifice during the freedom struggle, even you, Radhika, listen. Do you agree that Mangal Pandey did not die for the nation? Do you agree that Lakshmi Bai did not die? Do you agree Bhagat Singh ji did not give his life for the nation? You know, सब कुछ ऐसे ही हुआ. अब आप सुन लीजिए. I'm completely out of time, but the one question I want to put here for you, the viewer. Colombia is a country where just a few months ago, after Operation Sindoor, a parliamentary delegation headed by none other than Congressman Shashi Tharoor went. Colombia was a country that gave a statement actually condemning the killing of people in Pakistan during Operation Sindoor. After the presentation by the Indian delegation headed by Dr. Shashi Tharoor, they withdrew their statement for Pakistan and changed their mind about the role of India in the country. If in that country Mr. Rahul Gandhi actually goes and berates the potential of India, what does it really mean? Within a space of 3 months, is India a country that can change the mind of foreign countries to now being told in the same country that India has no potential to be a global leader? Is that really pepping up India's image, Rahul Gandhi style? It's not a question any of us should answer. It's a question for you, the viewer, the citizen of India. And for those who call citizens of India frogs, they just need to do some introspection. हर इंसान अगर आपको कीड़ा मकोड़ा ही नजर आएगा तो आपको सोचने की जरूरत है. मोदी जी आज बस इतना ही. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining me on debate number 1. On the other side, reinventing himself in a new packaged, new successful format, Bobby Deol joining me on the News Hour.